Hello defense aspirants, welcome to Tathastu Defense channel. So today we are going to discuss about the SSB process. So today we are going to discuss about the SSB process which we generally see in CDS exams, FCAT exams and NDA exams. So when we talk about CDS and NDA, so the process is same, SSB, we call it SSB. When we talk about FCAT exam, so just the name is changed but the process is more or less same. More or less नहीं, almost 99% same. Like in FCAT exam, in a FCAT exam we say it as AFSB, right? Generally we say it SSB, but in FCAT exam, Air Force Common Admission Test, after the clearing the exam, we say it AFSB, Air Force Selection Board. Like SSB, Service Selection Board, the full form, right? So when you clear the CDS exam, when you clear the FCAT exam, so you get the call letter, you get, they call you for the SSB or AFSB. When then you go there, then the process, actually the process is more important than the exam, because you clear the exam, that's okay. If you not go through the SSB, so you can't be there in the services, right? So SSB is the main, or I would say the typical part or the most important part of FCAT exam and CDS exam, right? So let's start with I'll like keep this conversation from my experience as well and the whole process as well. So let's take Varanasi as a center, 04 AFSB Varanasi, because I have been there multiple times. So let's take that center as our point of reference, 04 AFSB Varanasi, right? So when you clear the FCAT exam, when you clear the CDS exam, so from FCAT point of view, so they provide you the window 4 days. So you will choose your center. After that, if you don't choose, so they will provide the center as per their convenience, right? Then a gate will be given to you, time will be given to you. Okay, you have to be there on that time, on that particular date for your SSP, for your AFSP, right? So in Varanasi, the platform number 9, and you report there on the particular day. Let's say कि आज ही या फिर कल 17 से आपका SSB AFSB मान लेते हैं और आपको रिपोर्ट करना है, तो आप वाराणसी में रिपोर्ट करेंगे ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 9. वहाँ पे आपको एयरफोर्स ऑफिशियल दिख जाएंगे. देन वहाँ पे आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन चेक और आपका एडमिट कार्ड और ये सब चीज़ें देखेंगे. देन दे विल पुट यू इन अ बस एंड टेक यू इन द सेंटर, right? So now the day start, the reporting day, right? Sometimes the first day morning itself is the reporting day. See, it depends on the SSB centers as well. Sometimes they call you and they will make you stay there for one day, then they start the process from the other day. But sometimes the process itself starts from the very first day, right? When you reach there, correct? So I have written there here as a 0 day as a reporting day, but sometimes it's the first day itself, right? So the purpose of that day, if it is a reporting day, to ensure कि आप सारे कैंडिडेट्स पहुंच जाओ वहां पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, आपका चेस्ट नंबर अलॉटमेंट हो जाए, ब्रीफिंग हो जाए जनरल कि भाई आपको अगले 5 दिन वहां पे करना क्या है, राइट? पहले दिन की ब्रीफिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद मेनली 5 दिन की ब्रीफिंग प्रॉपर होती है. बट आपको एटलीस्ट वो बताते हैं कि व्हाट यू आर सपोज टू डू, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, व्हाट टाइप ऑफ एग्जाम, व्हाट टाइप ऑफ टास्क यू विल बी डूइंग देयर, राइट? So now the real game starts from day one. Like as I earlier said, कि reporting वाला thing in some SSBs they will start from the very first day, or in some SSBs they will you will report there like आज आप वहां पे रिपोर्ट करोगे, कल से आपका स्टार्ट होगा. किसी किसी SSB में आज ही आपने रिपोर्ट किया और आज से ही सुबह के बाद दोपहर से आपका स्टार्ट हो गया. तो नाउ द फर्स्ट डे स्क्रीनिंग टेस्ट. जनरली हम अपनी भाषा में जिन्होंने एसएसबी या एफएसबी दिया है, हम इसको पीपीटीटी बोल देते हैं कि भाई पीपीटीटी या स्क्रीन आउट बोल देते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट बोल देते हैं, और उसका नाम भी स्क्रीनिंग टेस्ट है. तो पर्पस क्या है इसका? फिल्टर आउट अनसूटेबल कैंडिडेट्स. Filter out unsuitable candidates based on their intelligence and ability to perform under stress. So in this key, what they want us to do is कि
Generally, okay, let's take it in this way कि generally around 250 300 candidates report there for the screening, right? And actually most of the candidates will be out on the very first day. So the 5 day process itself is built in a way कि आपके ऑलमोस्ट 80% कैंडिडेट्स, 75 to 80% कैंडिडेट्स पहले दिन ही बाहर हो जाते हैं, स्क्रीनिंग के बाद ही बाहर हो जाते हैं. उसके बाद जो बचते हैं वो पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट 4 days. वो कैंडिडेट्स, बचे हुए कैंडिडेट्स ही पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं बाद में. ऑलमोस्ट 80%, 75 to 80% पहले दिन ही बाहर हो जाते हैं इसी स्क्रीनिंग टेस्ट में. सो व्हाट दे डू इज कि भाई आपको बुला लिया, आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपको चेस्ट नंबर मिल गया, फिर वो आपको ले जाएंगे एक बढ़िया सा फर्निश्ड हॉल होता है. मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जो फर्स्ट टाइम जाते हैं, रिपीटर्स जो होते हैं उनको तो नहीं ले जाते फिर बार बार उधर, क्योंकि फर्स्ट टाइमर्स को दिखाने के लिए. तो आपको एक हॉल में ले जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे बढ़िया ऐसे टेबल वगैरह प्रॉपर बना होता है, उसी में एक सिस्टम वगैरह लगा होता है. नॉट फॉर योर यूज, बट हाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है दिखने वाला हूँ मैं बता रहा हूँ. फिर वहाँ पे दे विल ब्रीफ यू, मे बी द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, दे विल ब्रीफ यू देयर कि व्हाट यू आर गोइंग टू, व्हाट दे आर गोइंग टू गिव यू एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. सो सबसे पहले जो एक एग्जाम वहां पे होता है उसको हम OIR बोलते हैं, ऑफिसर्स इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट, OIR टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, जिसमें आपसे वो एक नॉर्मल एप्टीट्यूड, नॉर्मल रीजनिंग, नॉर्मल मैथमेटिक्स वो आपका चेक करते हैं. सो क्वेश्चन और नंबर में वेरी, जैसे फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जिसमें आपको 25-27 मिनट्स पर पेपर देते हैं, और 2 पेपर होते हैं आपके, और इट्स मतलब वेरी क्विक, आपको 25 मिनट्स में वो सॉल्व करना होता है दोनों क्वेश्चन पेपर, राइट. तो MCQ के 2 सेट होते हैं, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, थोड़ा बहुत आपका क्या कहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी, मतलब वो जनरली देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, राइट. ये वाला टेस्ट होने के बाद आपका OIR हो गया, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट हो गया आपका. देन दे विल टेक यू टू स्क्रीनिंग टेस्ट, द PPTT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, PPTT. दिस इज द मेन गेम चेंजर, राइट. मतलब मैनी कैंडिडेट्स अंडरस्टैंड दैट कि OIR के नंबर जुड़ते हैं इधर, यस ऐड होते हैं, बट बहुत लेस. दिस इज द मेन गेम ऑफ द वेरी फर्स्ट डे, दिस इज द मेन गेम. PPTT ही आपका पहले दिन का मेन गेम है. दिस इज द मेन थिंग, जहां से आपका डिसाइड होगा कि आप अंदर रहेंगे या आप अपने घर वापस जाएंगे. सो इन PPTT व्हाट दे डू इज कि वो आपको अगेन एक हॉल में ले जाएंगे, आपको बिठा देंगे. देन सामने से बढ़िया सा प्रोजेक्टर या एक स्मार्ट स्क्रीन इस तरीके की लगी होगी, और वहां पे आपको एक ना पिक्चर दिखाएंगे, एक बहुत ही धुंधली हेजी सी पिक्चर होगी. लेट्स से कि कोई बच्चा, जैसे हम बचपन में कभी थोड़ा बहुत पेंसिल से स्केचिंग कर लेना, कुछ उस टाइप की पिक्चर होगी, बहुत धुंधली सी दिख रही होगी, उसको हार्डली आपको समझ में आ रहा होगा कि उसमें कैरेक्टर्स क्या है और कोई कैरेक्टर उसमें क्या कर रहा है, राइट. For me there were multiple pictures, मतलब I have been in the SSB for the multiple times. तो जैसे मुझे एक का याद है कि एकदम हेजी सी पिक्चर थी, उसमें थोड़ा दिख रहा था कि एक टेबल सा है, उसमें 4 लोगों ने आपस में उस टेबल को घेरा हुआ है, और ऐसा समझ में आ रहा था कुछ डिस्कशन चल रहा है ना. अब उसमें जेंडर आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, बट इतना समझ में आ रहा था कि वो बच्चे हैं, नॉट वेरी एडल्ट और यंग ओल्डर पीपल, वो बच्चे हैं, ये समझ में आ रहा था. तो इतना आइडेंटिफाई हुआ. वो 1 मिनट के लिए आपको दिखाएंगे पिक्चर, उसके बाद पिक्चर हटा देंगे. समटाइम्स मतलब इट डिपेंड्स एज वेल, एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस तो थोड़ा अलग अलग भी रहा है, कभी 30 सेकंड्स के लिए भी दिखाते हैं, कभी 1 मिनट के लिए भी दिखाते हैं, बट हम मान लेते हैं कि वो 1 मिनट के लिए दिखाते हैं. उसके बाद दे विल गिव यू 30 सेकंड्स और अराउंड 1 मिनट. पिक्चर हटा देंगे, उसके बाद पिक्चर हटा देंगे, आपको अराउंड 1 मिनट देंगे टू फॉर्म अ स्टोरी. आपको सोचने के लिए 1 मिनट का वक्त देंगे कि आप भाई अपने मन में सोच लो कि आपको कौन सी स्टोरी बनानी है. देन वो एक पेपर दिया हुआ होता है उन्होंने आपको, फिर 4 मिनट देंगे वो कि आप अपनी स्टोरी लिख लो. अब आपको जो समझ में आया, जेंडर आइडेंटिफाई करके, आपको जो माहौल समझ में आया कि क्या लोग थे, क्या थे, कोई कर रहे हैं. बहुत बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत बचकानी स्टोरीज बनाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बात की कि जो मैंने पिक्चर देखी थी उसमें मेरे साथ के और भी लोग थे, उन्होंने किस तरीके की स्टोरी बनाई कि भाई स्कूल में गेम चल रहा है, वो लूडो खेल रहे हैं इसलिए खड़े, या फिर कैरम खेल रहे हैं, या फिर कोई गेम खेल रहे हैं. मतलब दिस इज समथिंग वेरी नाइव थिंग, राइट.
यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और मोर ऑफ अ पॉजिटिव नोट, जहां पे एक मैसेज हो, जहां पे कुछ ना कुछ एक पार्ट ऐसा रोल प्ले कर रहा हो आपका कि दैट शुड बी मीनिंगफुल, राइट? अब जैसे मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया कि भाई उस समय मैंने एक्चुअली न्यूज में पढ़ा हुआ था कहीं कि चाइना जो है उस पर काम कर रहा है एयर पॉल्यूशन कम कम करने के लिए, स्प्रिंकलर वगैरह पे कुछ पे काम कर रहा था। आई एम नॉट फॉरगेटिंग दैट नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो आई रिलेटेड दैट थिंग टू दैट पिक्चर कि ये स्टूडेंट्स हैं, इनका साइंस का वो है, तो ये एक इनोवेशन करना चाह रहे हैं, उस पर ये डिस्कस कर रहे हैं, इनका ग्रुप है, और ये इंडिया में जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम बना रहे हैं। सो माय थॉट प्रोसेस वाज दैट कि देयर इज समथिंग, देयर इज अ प्रॉब्लम पॉल्यूशन, और ये स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट्स अ विजनरी थिंकिंग, राइट? इट्स अ मोर ऑन अ पॉजिटिव नोट्स। तो आई गॉट थ्रू इट, माय स्टोरी वाज गुड, आई गॉट थ्रू इट। और हर बच्चे अपनी अपनी तरह की स्टोरी बनाएंगे, राइट? अराउंड 250 टू 300 स्टूडेंट्स होंगे वहां पे, एस्पिरेंट्स होंगे। सोचो 300 तरीके की कहानियां बनेंगी, 300 तरीके की थिंकिंग, 300 तरीके की सोच होगी, 300 तरीके की कहानियां बनेंगी, ठीक? अब वहां पे ग्रुप में आप डिवाइडेड होते हो। अब जब ये पीपीडीटी की कहानी, पीपीडीटी हो जाता है, मतलब आपने अपनी स्टोरी लिख ली, पेपर को मोड़ने के लिए बोल देंगे, फिर वो आपको देखने नहीं देंगे, दोबारा आप नहीं देख सकते अपनी स्टोरी, राइट? फिर वो आपको ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, 8 8 10 10, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ। अगर मान लो ये स्ट्रेंथ 200 ही हो तो फिर वो थोड़ा कम कम का ग्रुप बनाएंगे, अगर 300 हो तो थोड़ा ज्यादा ज्यादा का ग्रुप बना देंगे, मान लो 10 लोगों का ग्रुप बना दिया, 15 लोगों का ग्रुप बना दिया। नाउ यू विल बी गोइंग फॉर अ जीडी, एक ग्रुप डिस्कशन होता है, राइट? वहां पे मे बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड भी होंगे, अदर ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होगा, एक जीटीओ भी हो सकता है, 2 3 पीपल विल बी देयर, दे विल बी असेसिंग यू, राइट? सो नाउ यू विल बी सेमी सर्कल बना के वो आपको ग्रुप में बिठा देंगे, देन 1 1 करके, मतलब चेस्ट नंबर वाइज यू विल बी हैविंग द चेस्ट नंबर। फॉर एग्जांपल कि किसी का 52 है, मेरा 53 है, किसी का 54 है, तो 53 वाला अपनी 52 वाला अपनी पहली स्टोरी सुनाएगा, फिर मैं अपनी सुनाऊंगा, फिर वो सुनाएगा। तो सब एक एक करके अपनी स्टोरी नरेट करते हैं कि भाई किसने क्या क्या स्टोरी बनाई। देन नाउ कम्स द रियल पार्ट ऑफ दिस पीपीडीटी, द फिश मार्केट वी से इट, कि वही वो मछली मार्केट बना देते हैं, मच्छी बाजार बना देते हैं। कि नाउ अब द थिंग इज कि वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने अपनी अपनी स्टोरी बनाई, अब हम सब लोग डिस्कस करके कॉमन स्टोरी फॉर्म करें, और वो कॉमन स्टोरी जब फॉर्म हो जाए उसके बाद हम अपने ग्रुप में से एक बंदा नॉमिनेट करेंगे, दैट विल नरेट दैट स्टोरी टू द बोर्ड, जो 2 3 पीपल जो हमें असेस कर रहे हैं उनको सुनाएगा। अब नाउ सी द थिंग इज कि अब सबको पता है कि जिसको भाई नॉमिनेट किया जाएगा, दैट मींस कि हम अगर मिलके किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं तो उस बंदे में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, इसलिए तो नॉमिनेट कर पा रहा है। हर कोई लीडर बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम खुद को, हाँ, हम अपने आप को नॉमिनेट करें। कई बार तो ऐसा होता है कि बंदे खुद को नॉमिनेट करके खुद खड़ा होकर नरेट भी करने लग जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो दैट इज अ फिश मार्केट, वहां पे बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, यू कांट कंट्रोल दैट दोस थिंग्स। तो यू हैव टू प्ले वेरी स्मार्ट और वेरी बी रियल। आई वुड से कि जो आता है, जो पता है, बी रियल, बी शो योर रियल सेल्फ, डोंट ट्राई टू एक्ट वेरी स्मार्ट, राइट? वो बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है, एक आध बार काम कर गया, बट वो 5 दिन की प्रोसेस में काम नहीं करेगा, पहले दिन कर सकता है, करेक्ट? तो आपने अपनी स्टोरी सुनाई, सबने अपनी अपनी स्टोरी नरेट की, आप सारे मिलके एक स्टोरी फॉर्म करते हैं। उसमें कई बार ऐसा होता है डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं ताकि मेरी सुनी जाए, आवाज किसी की तेज हो गई, वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा तो मेरी सुनी जाए। वो होता है, जब आप एक्सपीरियंस करेंगे देन यू विल गेट टू नो इट देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियर, राइट? तो देन आफ्टर दैट वो हो जाता है, फिर उसमें वो असेस कर लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट अपने हिसाब से असेस करता है, बाकी दो दो जो पीपल होते हैं वो अपने हिसाब से असेस करते हैं, ऑफिसर्स। देन आपका फिश मार्केट खत्म हुआ। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि कॉमन स्टोरी फॉर्म ही नहीं हो पाती और वो कह देते ठीक है भाई तुमने नहीं कर पाई, रहने दो, हमको नहीं सुननी। समटाइम्स ऐसा होगा कि उनको ऐसा लगेगा कि आपका ग्रुप थोड़ा बड़ा है और आप फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी डिवाइड कर देंगे, भाई एक कॉमन स्टोरी पर आओ, तो लेकर तो आओ एक कॉमन स्टोरी, करेक्ट? तो मतलब ये एक प्रोसेस है, इट्स अ वेरी एंजॉयबल प्रोसेस, मजा भी बहुत आता है, बट हाँ फिश मार्केट तो बनता ही है। तो देन आप फिर वो स्टोरी फॉर्म हो गई, नरेशन हो गया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद आपको रिजल्ट सुनाया जाता है। अब वो बोर्ड को जो बंदे ठीक लगते हैं वो उनको ले लेते हैं, रोक लेते हैं, बाकियों को घर भेज दिया जाता है। तो अगेन अराउंड 300 में से पहले दिन अराउंड 240 से 250, मतलब इट मे बी 230 एज वेल और 270 एज वेल, इट डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, पर अराउंड 80% बच्चे घर गए ना। आपका पीपीडीटी खत्म। इसी को हम स्क्रीनिंग बोलते हैं कि भाई किसी से आपने सुना होगा कि मैं स्क्रीन आउट हो गया था, किसी से आपने सुना होगा कि मैं स्क्रीन इन हो गया था, मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, किसी से सुना होगा कि मैं रिकमेंड हो गया था। तो आई विल टेल यू एवरीथिंग कि वो क्या होता है। तो ये हो गया स्क्रीनिंग।
जो यहां से घर गए वो हो गए स्क्रीन आउट, जो यहां से अंदर गए वो हो गए स्क्रीन इन। नाउ अब उस दिन अब इसके बाद अब बस आपको शाम को क्या होगा, आपका सामान सारा जमा हो जाता है, फोन सारा जमा हो जाता है, आपको फोन दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा आप अपने घर पे एक बार कॉल करके बता दो भाई कि अगले 5 दिन अब बात नहीं हो पाएगी, अब अगले 5 दिन के लिए मैं यहीं पे हूँ। उसके बाद आपका फोन फिर से ले लिया जाएगा। देन इन सब के बीच में लंच वंच फॉलो होता रहता है, लंच वगैरह मिलता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है भाई, ध्यान रखते हैं। अच्छा लगता है, 5 दिन का प्रोसेस बहुत एंजॉयबल है, मजा आता है, राइट। देखो मैंने बता भी दिया, 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर दिखाई जाती है, देन यू हैव टू राइट अ स्टोरी 4 मिनट के लिए, फिर ग्रुप डिस्कशन होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप एंड टीम वर्क देखना, ठीक है। और यहाँ से जो स्क्रीन आउट हो गए वो घर जाते हैं, स्क्रीन इन हो गए जो अंदर आते हैं। नाउ डे 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट। अभी इस पार्ट पे थोड़ा सा ये होता है कि अगर सीडीएस और एफकेट की बात करें तो कहीं कहीं क्या होता है कि उसी दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, कहीं कहीं होता है कि दूसरे दिन से करते हैं, तो डिपेंड्स ऑन द फोर्स एज वेल, बट प्रोसेस इज सेम, टेस्ट इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, राइट। नाउ अब इनसे पहले एक चीज होती है कि आपका एक पीआईक्यू फॉर्म होता है, पीआईक्यू जिसको बोलते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आयर, ठीक है। पीआईक्यू पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आयर, जो ये आपसे फिल करवाते हैं, ये आपके साइकोलॉजिकल होने से पहले होगा। पीआईक्यू आपका फिल करवाएंगे जिसमें आपकी एक एक डिटेल, आपकी ग्रेजुएशन, आपका स्कूल, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी हॉबीज, आपके मम्मी के बारे में, आपके पापा के बारे में, आपकी फैमिली मेंबर्स के बारे में, जो आपकी अपनी फैमिली है उसके बारे में A to Z वो डिटेल भरवाएंगे एक एक। अगर आपका कॉलेज किया है तो आपको सेमेस्टर वाइज भरवाएंगे कि भाई इस सेमेस्टर में क्या हुआ, इस सेमेस्टर में क्या हुआ, इस सेमेस्टर में क्या हुआ, तो दे विल गेट द फेयर आइडिया, आपसे पूरी एक एक डिटेल भरवा लेंगे। नाउ द आइडिया बिहाइंड दीज डिटेल्स इज कि अगर किसी बंदे को फेक करना है, अगर उसने पीआईक्यू में फेक कर दिया तो एक चीज आप समझिए कि इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। अगर आप झूठ लिख रहे हैं 5 दिन की प्रोसेस में, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, दिमाग पे स्ट्रेस होता है, दिमाग मल्टीपल चीजों में बिजी होता है, तो यू विल फॉरगेट मैनी थिंग्स, और वहां पे आप पकड़ जाओगे तो दैट विल शो योर ट्रिकी पार्ट कि आप ट्रिक कर रहे हो उनके साथ, आप ऑनेस्ट नहीं हो, तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस आउट, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज वेरी मच साइंटिफिकली डिजाइंड प्रोसेस, कि वो 5 दिन का प्रोसेस जिसमें वो आपके OLQs चेक करते हैं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज चेक करते हैं, ठीक है। OLQs पे हम बाद में बात करेंगे, किसी एक वीडियो में बात कर लेंगे कि हाउ टू डेवलप देम, राइट। तो अब आ जाते हैं हम टेट पे, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये सारा कुछ साइकोलॉजिकल प्रोसेस का पार्ट है। अब थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में क्या होता है कि जो हमने पीपीटीटी वाला पार्ट बोला वैसी ही पिक्चर्स दिखाई जाती है, बट यहाँ पे 12 टाइम्स ये होता है। आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, पिक्चर गायब, आपने 4 मिनट में एक स्टोरी लिखी, फिर अगली पिक्चर आई, पिक्चर गायब, फिर आपने स्टोरी लिखी, ऐसे करके 11 टाइम्स हमको पिक्चर दिखाई जाएंगी जहां पे आप स्टोरी लिखोगे। 12 वाला जो पार्ट होगा ना, वहां पे आपको पिक्चर नहीं दिखाई जाएगी, एक खाली स्क्रीन होगी, वहां पे आपको अपनी स्टोरी बनानी है, राइट। वहां पे आपको अपनी स्टोरी बनानी है। तो अब इसमें भी क्या होता है कि बच्चे ना प्री कंसीव्ड नोशन लेके जाते हैं कि भाई अपने घर से स्टोरी तैयार करके लेके जाते हैं, ठीक है। दैट कुड वर्क अब 1 टाइम और 2 टाइम, बट 90% केसेस में, 95% केसेस में दैट डोंट वर्क। सो बी रियल सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ ना यार, पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा बढ़ाओ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, नॉलेज गेन करो, तो यू विल बी एबल टू राइट एनीथिंग, यू विल बी एबल टू कनेक्ट एवरीथिंग टू एनीथिंग, राइट। अब इसका फोकस क्या है, क्रिएटिविटी चेक करना है भाई, क्रिएटिविटी चेक करना चाह रहे हैं वो, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज चेक करना चाह रहे हैं, इमोशनल मैच्योरिटी चेक करना चाह रहे हैं। अब सोचो आप 12 तरीके की कहानियां लिखोगे, है ना, तो सब कहानी का थीम तो एक जैसी नहीं होगी, यू हैव टू राइट ऑन अ वेरी डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस, तो वो आपकी 12 तरीके की डायमेंशंस देख पाएंगे। लाइक आई यू गेटिंग माई पॉइंट, कि वो टेस्ट जो है किस लेवल तक आपको चेक करना चाह रहा है। दिस टेस्ट इज वेरी मच साइंटिफिकली डिजाइन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एसएसबी एक प्रोसेस है, इसको एंजॉय करना है, इसको एग्जाम की तरह एकदम वैसे लोगे ना कि मुझे पास ही करना है, तो इट विल बिकम अ बिट डिफिकल्ट। यू हैव टू थिंक लाइक ऑफिसर, यू हैव टू वर्क एक्ट लाइक एन ऑफिसर, तो उसके लिए आपको डेवलप करनी है। दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग फॉर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज, OLQs। दे डोंट एक मतलब एक आध क्वालिटीज भी कम होंगी ना तो वो नहीं करते आपको, कुछ भी ईज नहीं देंगे, उनको चाहिए तो पूरी चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, राइट। तो आपका टेट हो गया, देन आता है वेट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, अगेन ये प्रेशर वाला गेम है, उन्होंने टेट कर दिया, आप वेट करेंगे। इसमें 60 वर्ड्स आपको दिखाए जाएंगे, 15 सेकंड में एक वर्ड आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करेगा,
स्क्रीन पे फ्लैश करेगा, उसी 15 सेकंड के अंदर आपको उसको वर्ड देखना है, उसके ऊपर एक सेंटेंस फ्रेम करना है। नाउ सेंटेंस फ्रेम करना है, ठीक है। राइट द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू सी ईच वर्ड इन 15 सेकंड। द फर्स्ट थॉट ऑब्वियसली 15 सेकंड के अंदर जो पहले आएगा दिमाग में वही लिख पाओगे, ज्यादा सोचने का समय है ही नहीं, राइट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिवील्स योर सबकॉन्शियस थॉट्स, एटीट्यूड्स एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुली। अब दिमाग में पहली चीज वही आएगी जो आपका बिहेवियर है, जो आपका वे ऑफ थिंकिंग है, जो आपकी वे ऑफ लाइफ है, जो आप जिस वे में आप लाइफ जीते हो। फॉर एग्जांपल इफ योर थॉट प्रोसेस अलाइंड विद अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, तो वैसा ही कुछ आपके दिमाग में आएगा, राइट। राइट तो अब लेट्स से कि वर्ड आया मर्डर, क्या आएगा दिमाग में? मर्डर से क्या आएगा दिमाग में? सोचो क्या आएगा दिमाग में। देयर कुड बी मेनी थिंग्स बट द मोस्ट पॉजिटिव थिंग वुड बी laws and regulations must be strict towards murder cases. You are thinking in a law way, you are thinking in a positive way, right? अब मान लो आ गया ब्रोकन, ब्रोकन वर्ड आ गया, क्या बनाओगे? आप लिखोगे कि इंसान जीवन में थक हार के टूट जाता है। अरे तो आपने वैसे ही हम हार मान ली, आपकी थॉट प्रोसेस ही वही है। लिखो रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन। क्रिकेट देखते इतने लोग भाई, रिकॉर्ड टूटते हर दिन। लिखो रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन। तो अब ना अंडरस्टैंड ये चीज ना, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आपका परसों एसएसबी और आज आपने याद कर लिया। वर्ड्स याद करके कुछ नहीं होता। इट्स अ थिंग दैट शोज योर रियल सेल्फ, व्हाट इज योर वे ऑफ लिविंग, व्हाट्स योर वे ऑफ लाइफ। वही थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, वही वहां पे पुट कर पाओगे, करेक्ट। सो बी विजनरी, बी रियल, grow yourself in a very positive way that will grow officers like qualities in you, that will make sure कि you will be able to write positive aspects, correct। तीसरा होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन, आपको 60 सिचुएशन दी जाएंगी, 60 सिचुएशन दी जाएंगी, जिसमें मतलब आपको आंसर लिखना है, राइट। वही 30 सेकंड्स में आपको एक आंसर लिखना है। फॉर एग्जांपल ऐसा बोला जाएगा कि आप जो है नदी के पास खड़े हैं, आपने देखा आपका दोस्त जो है नदी से छलांग मार दिया, आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि मैं बिना किसी हिचकिचाते हुए नदी में जाकर तैर कर उसको बचा कर ले आऊंगा। अब नाउ थिंक थिंक इट इन दिस वे। आपने ये बात यहां बोल दी कि मैं जंप करूंगा नदी में और उसको सेव करूंगा, अपने दोस्त को बचाऊंगा। ये तो आपकी सिचुएशन का रिएक्शन हो गया। तो नाउ यू थिंक यू आर अ ब्रेव पर्सनैलिटी, राइट। यू थिंक यू आर अ ब्रेव पर्सनैलिटी। तो रिमेंबर दिस ब्रेव वर्ड अभी, ओके, रिमेंबर दिस ब्रेव वर्ड। आई विल टेल यू कि कहां पे ये ब्रेव वर्ड जो आपको इंपैक्ट करेगा। अभी ये ब्रेव वर्ड रिमेंबर याद रखना, ठीक है। ऐसी 60 सिचुएशंस होती हैं तो आपको अलग अलग आंसर्स देने पड़ते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इस प्रोसेस में यू कांट फेक, आप उनको बुद्धू नहीं बना सकते। दिस प्रोसेस इज वेरी मच साइंटिफिकली डिजाइंड, आप उनको बुद्धू बना ही नहीं सकते, ओके। देखो आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, वो आपकी चेक करते हैं इसमें, ऑब्वियसली है। अब सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट एक होता है जिसमें आपको 5 पैराग्राफ लिखने होते हैं कि भाई कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, इस तरीके से, है ना। रिवील सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस एंड हाउ यू परसीव योर सेल्फ एंड आर परसीव्ड बाई अदर्स। तो आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। आप अपने बारे में खुद क्या सोचते हो। तो एक इसकी टिप क्या है? बी ऑनेस्ट एज कंसिस्टेंसी की शो ट्रेट्स लाइक ऑप्टिमिज्म, एडेप्टेबिलिटी एंड लीडरशिप। तो अब मान लो आप बच्चे कई होते हैं बना के ले जाते हैं घर से, कहानी रट के ले जाते हैं, मेरी मम्मी मेरे बारे में ऐसा सोचती है, मेरे पापा मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। वर्क नहीं करता भाई, तभी तो बोल रहे हैं बी ऑनेस्ट भाई, जो हो वही दिखाओ, जो हो वही दिखाओ। दे नीड ट्रेनेबल पीपल। अरे थोड़ी बहुत कमी होगी, वो ट्रेनिंग में सही कर लेंगे, वो ट्रेन कर लेंगे। परफेक्ट नहीं चाहिए उनको बंदा। अगर आप परफेक्ट होगे तो फिर भाई वो सिखाएंगे क्या आपको? भरे 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 कप में कोई चाय नहीं डाल सकता। नाउ डे 3 एंड डे 4,
रिमेंबर दैट ब्रेव वर्ड आई सेड, अभी अभी मैंने जो बताया ब्रेव वर्ड को याद रखना. नाउ डे 3 एंड डे 4 ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क्स, मतलब जीटीओ टास्क बोलते हैं इसको, जिसमें जो ऑफिसर होता है उसको हम जीटीओ बोलते हैं. नाउ यहाँ पे आपकी फिजिकल एबिलिटी एक्चुअली चेक होती है, मेंटल एबिलिटी के साथ साथ फिजिकल एबिलिटी चेक होती है टू एसेस ग्रुप बिहेवियर, लीडरशिप, टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज. ग्रुप में आप काम करेंगे, अकेले भी काम करेंगे, आधे ग्रुप में काम करेंगे, ठीक है. ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, नेशनल इश्यूज हो सकता है, एंड आपको डिस्कस करना है. 2 राउंड होंगे ऐसे करंट और सोशल इश्यूज पे. ऑब्जेक्टिव दिस असेसमेंट असेसेस योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली, एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड योर बिहेवियर इन ग्रुप सेटिंग, राइट. You are going to be an officer, you will be leading there, you will be leading your team will work under your command, so these things must be checked, right. ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, एक सिनेरियो, एक मैप दिया जाएगा, मतलब आपको एक मैप दे देंगे, उसमें ऐसे ऐसे सिचुएशन डाल देंगे, बोल देंगे कि भाई आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, और वहां पे उन्होंने बम लगा दिया है, वहां पे गाय डूब रही है, गाय का बाड़ा है, वहां पे आग लगा दी है, मंदिर के आगे बम रखा हुआ है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आप कैसे उस चीज को सॉल्व करेंगे, आप पहले गाय को बचाएंगे या फिर मंदिर वाले बम को डिफ्यूज करवाएंगे. तो दे विल थिंक कि भाई ऐसी सिचुएशंस होती हैं ऑब्वियसली. इफ यू विल बी पोस्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, इफ यू विल बी पोस्टिंग इन नक्सल एरियाज, तो देयर वुड बी मैनी थिंग्स जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं. तो यू हैव टू एक्ट लाइक अ लीडर, यू हैव टू एक्ट लाइक अ डिसीजन मेकर, यू हैव टू एक्ट लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्वर, राइट. आपको वो क्विक डिसीजंस वहां पे लेने पड़ेंगे, जहां पे आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी चीजें कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या जरूरी है, हमारे साथियों के लिए क्या जरूरी है, समाज के लिए क्या जरूरी है, वो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, करेक्ट. सिचुएशनल प्रॉब्लम दे देंगे, मैप दे देंगे, प्लान लिखो, ग्रुप डिस्कशन करो. आप अपनी कॉपी पे प्लान लिखोगे कि मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, फिर उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है. क्योंकि लीडर जो है ना वो नेचुरली एक्सपेक्टेड होता है, वो इमर्ज करके आएगा, वो ऐसे करके नहीं बनेगा, वो नेचुरल धीमे 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 होता है, वो इट टेक्स टाइम. प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, फिजिकल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जिसमें आपको बल्ली, फट्टा, रस्सी, सांप ये सब दे देंगे, और टास्क आप अपनी टीम के साथ भी करोगे. कुछ कई सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, अपनी टीम के साथ भी करोगे, और कुछ चीजें आप अकेले भी करोगे. ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होती है, स्नेक रेस होती है, जिसमें आप भी सीरीज ऑफ ऑब्स्टिकल्स टीम के साथ करोगे, करेक्ट. लेक्चरेट होता है, जिसमें आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे, आप एक टॉपिक चुनेंगे और आप उस पर 3 मिनट बोलेंगे, ठीक है. वो आपकी स्पीकिंग एबिलिटी देखते हैं, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स देखते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देखते हैं. अब नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स, बहुत बच्चे पूछते हैं कि भाई हिंदी में एसएसबी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी वो रखते हैं कि आप बोल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया, आप हिंदी पे स्विच किए, then let's back again to English. But what I have seen in my experience, what my colleagues have seen in their experiences, English is a must, right. Hindi can't let you go through the whole process. So communication skills or English is a must for this exam. You have to understand it, you have to accept it, right. आप ग्रुप टास्क होगा, फॉर एग्जांपल अभी तक आप पूरी टीम के साथ टास्क कर रहे थे, अब आधी टीम के साथ टास्क करेंगे. कम रिसोर्सेस में आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज मतलब आप आपका स्ट्रेस देखेंगे कि लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ. इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, इसमें 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जिसमें आपका एक फिजिकल एबिलिटी चेक होती है. अभी मैंने वो ब्रेव वर्ड बोला था, नाउ अंडरस्टैंड. आप ब्रेव हो, ठीक है. यहां पे आई कमांडो वॉक, और कमांडो वॉक आप करते करते आपके पैर ऐसे 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 लड़खड़ा गए और आप वहीं बैठ गए. किस बात के ब्रेव हो आप? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे वहां पे. कनेक्शन. इसीलिए ये 5 दिन का प्रोसेस है, इसीलिए आपकी एक वो लगती है छोटी छोटी चीजें हैं, बट दैट विल शो योर रियल पर्सनैलिटी. वो रियल पर्सनैलिटी आपकी दिखा रहे हैं भाई. तो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक श्योर कि व्हाट यू आर, शो दैट ओनली. डोंट फेक इट, डोंट फेक इट. कमांड टास्क होता है, यू विल बी गिवन अ टास्क, मतलब आप यहाँ पे लीडर, आप कमांडिंग ऑफिसर होंगे, आपके साथी होंगे, आपको एक कमांड टास्क को लीड करना है, कमांड करना है, देन यू विल बी एबल टू डू दिस, राइट. यहाँ पे आपको वो लीडरशिप रोल मिलता है. एक फाइनल ग्रुप टास्क होता है, जिसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता है, सिमिलर टू पीजीटी, बट द कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट एक इंक्रीज कर देते हैं वो. ओके, 3 to 4 days ये हो चलता है. नाउ 5
डे 5 पर्सनल इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि आपका जो इंटरव्यू है पर्सनल इंटरव्यू, वो जीटीओ के किसी भी दिन हो सकता है, वो डे 3 पे भी हो सकता है, वो डे 4 पर भी हो सकता है, वो डे 2 पर भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी, राइट। वो कभी भी आपको बुला सकते हैं। समटाइम्स तो आपको जीटीओ की ड्रेस में ही जाके इंटरव्यू देना पड़ता है, आप हाफ शॉर्ट में होंगे, व्हाइट में, व्हाइट टी शर्ट होगी, व्हाइट शूज में होंगे, ठीक है। समटाइम्स आपको टाइम इतना दिया जाएगा, आप प्रॉपर ड्रेसअप में जा सकते हैं, अपना फॉर्मल ड्रेसअप में। अभी अभी नाउ 1-to-1 जो इंटरव्यू होता है आपका, वो या तो फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड के साथ होगा, या फिर बोर्ड के साथ होगा, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड के साथ होगा, और जो ऑफिसर होगा वो ब्रिगेडियर रैंक तक के ऑफिसर्स होते हैं, राइट। सो दिस इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू कैन गो फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 40 मिनट्स टू 1.25 आवर्स, 1.5 आवर्स, आराम से जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द कन्वर्सेशन व्हाट यू टू आर डूइंग, राइट। नाउ आई टोल्ड यू अबाउट द पीआईक्यू, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आया, वो सबसे ज्यादा काम आता है यहाँ पे, बिकॉज थोड़ा सा रेफरेंस लेके बात कर लेते हैं कि आपको इजी हो जाएगा समझने में, क्योंकि जो सीडीएस एफकेट देते हैं उनको यूपीएससी के बारे में भी थोड़ा नॉलेज होता है। जैसे यूपीएससी में डेफ होता है ना, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो सेम काम करता है कि वो पैनल मेंबर्स के पास होता है, उसको देखकर वो आपसे सवाल पूछते हैं, सेम चीज पीआईक्यू आपका यहाँ पे काम करता है, बट पीआईक्यू अ बिट मोर डिटेल्ड होता है, सो दैट कि वो आपकी रियल पर्सनैलिटी को जान पाए। अब इस प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है, मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था कि वन ऑफ द पर्सन इन दोज डेज, वो उसने अपने पीआईक्यू में लिखा था कि उसके फादर इज अ फार्मर। सो एक्चुअली देयर आर मेनी थिंग्स दैट इम्पैक्ट योर इंटरव्यू एज वेल, कि आप अगर एक अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आए हैं तो दे विल थिंक ओके, इफ यू आर नॉट, इफ यू हैवंट डन वेरी वेल इन योर एकेडमिक्स, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड एरिया और प्रिविलेज्ड फैमिली, बट यू आर डूइंग इट, so that is acceptable। तो उस पार्ट पे आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आएगी। बट इफ यू आर फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड एंड यू हैवंट डन वेल इन योर एकेडमिक्स, तो फिर वहां पे वो सोचते हैं यार इसने तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी, इतना सब कुछ था, सारी चीजें, बट वहां पे अगर आपने स्पोर्ट्स में अच्छा किया, आपने अदर एक्टिविटीज में अच्छा किया, तो वो कंपनसेट हो गया, वो समझेंगे ओके ठीक है, उसने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बट उसने ये चीजें ज्यादा करी, अदर एक्टिविटीज ज्यादा करी। तो मैनी मोर थिंग्स वहां पे ना आपकी इंपैक्ट करती हैं आपकी पर्सनैलिटी को समझने में। तो अभी उस बंदे ने क्या किया, उसने अपने फादर को बता दिया फार्मर है, राइट, खेती करते हैं। अभी बोर्ड ऑफ द प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड को क्या लगेगा कि अरे ठीक है, मतलब बच्चा अंडर प्रिविलेज उससे आ रहा है तो थोड़ा बहुत कर लेंगे, मतलब अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश इंग्लिश भी नहीं होगा सही, थोड़ा बहुत वो नहीं होगा, तो एक होता है कि ठीक है, मतलब इतने छोटे गांव से निकल के आ रहा है यहाँ तक, दैट इज अ वेरी इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। ऑफिसर बनना चाह रहा है, इट्स अ गुड थिंग। नाउ व्हाट हैपेंड वाज के ऑन द थर्ड डे ऑफ द जीटीओ डे, वो शाम को हम बैठे थे, खेल रहे थे, ही वाज टॉकिंग अबाउट विद अदर फेलोज एंड आई वाज देयर। तो एक जीटीओ साहब आए और उसको थोड़ा कन्वर्सेशन के हिसाब से बाहर ले गए। ही वाज डिस्कसिंग अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी एंड दिस सम मुद्दा जो कुछ इश्यूज थे। तो जीटीओ साहब को लगा कि यार बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है, वो इसके ऐसे बाहर ले गए, उससे पूछने लगे यार इंटरनल सिक्योरिटी यू आर डूइंग वेल, मतलब यू आर डूइंग, आपको काफी नॉलेज है। हाँ, मतलब हाउ डिड यू गेट दिस नॉलेज? अरे सर मेरे फादर ना आईबी में है, तो थोड़ा बहुत पापा से एक इनसाइड वगैरह आइडिया मिलता है। ओ योर फादर इज फ्रॉम आईबी, बट अब नाउ द पार्ट इज, वो बंदा भूल ही गया कि मैंने पीआईक्यू में लिखा था मेरा बाप किसान है। तो झूठ मत बोलो, झूठ मत लिखो, पकड़े जाओगे। इसलिए बी योर रियल सेल्फ। 5 दिन की प्रोसेस में इतनी चीजें होती है, नहीं याद रहेगा क्या झूठ बोला था, क्या झूठ लिखा था, करेक्ट। तो आपका 1-to-1 इंटरव्यू होगा, आपके एकेडमिक्स से होगा, राइट। और एकेडमिक्स से वो काफी डिटेल में पूछ लेते हैं, तो वो एक्सपेक्टेड पार्ट है। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आयर होता है ना। एकेडमिक हॉबीज, करंट अफेयर, सिचुएशनल जजमेंट, लाइफ गोल्स, फैमिली बैकग्राउंड सब पूछेंगे। और उसके बाद होता है आखिरी दिन आपका कॉन्फ्रेंस, जिसमें सारे लोग बैठते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठेंगे, जीटीओ बैठेंगे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठेगा, और वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको लेंगे, मतलब ऐसे करके सामने सेमी सर्कल में ऐसे बैठे होंगे, सी शेप में, आप ऐसे सामने जाओगे, उनके पास थोड़ा सा आपका कन्वर्सेशन होगा उनका, वो आपसे पूछेंगे आपको कैसा लगा, कोई सजेशन वो आपसे मांग लेंगे कि आपको क्या कोई सजेशन देना चाहता है, आपको प्रोसेस कैसी लगी, क्योंकि वो सब डिस्कस करते हैं दिस कैंडिडेट इज वर्दी और नॉट। वो आपको नहीं पता चलेगा, वो आपस में डिस्कस करते हैं, बिकॉज एवरीवन हु इज इन्वॉल्व इन योर रिक्रूटिंग प्रोसेस, वो वहाँ पे सभी लोग होंगे, 13-14 लोग जितने भी होंगे वहाँ पे सभी होंगे, राइट। उसके बाद फिर आप बाहर बैठ जाएंगे, वो सारे कैंडिडेट्स के साथ होगा, फिर बाहर आएंगे, रिजल्ट बताएंगे। अगर मान लो आप 50-60 कैंडिडेट्स रह गए थे पहले दिन, जिन्होंने 5 दिन का प्रोसेस किया है पूरा,
तो मे बी 7 और 8 रिकमेंड हो जाते हैं, जो रिकमेंड हो जाते हैं वहीं स्टे करेंगे फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 days जहां पे उनका मेडिकल होगा। और समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स कि एक भी रिकमेंड नहीं होता, तो दिस इज द प्रोसेस। सो आई होप यू गॉट द फेयर आइडिया अबाउट द एसएसबी प्रोसेस, करेक्ट? तो understand it, prepare for the exam, do well, and we will be coming with the ऐसे ही वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, राइट? तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में।